services web application. In this lecture, I will review the front end and the missing part of our this series lectures. So first of all, we have to run npm run development. It's taking time because of that currently is indexing the files. That's why it's taking too much time to write the npm run development mode. After that, I'm going to press enter to run the my development mode in new terminal. Before I writing PHP artisan serve, I am waiting for to complete the indexing. Here is the indexing is completed. Now I am going to write PHP artisan serve. Okay, there is a spelling mistake in artisan. Here is our server started. Now I am going to type the address and view the project in our browser. This is the specially video made for the Yasin Hamid from the Egypt. He messaged me more 2 or 3 times for when I am going to upload the front end tutorial about how I implement my front end and back end of the this website and the user dashboard. Before that, I decided to not upload my that missing part of the code. Before this, I got 100 subscriber on my this playlist, but after talking with Yasin Hamid, I decided to made a video on to tell you how I do it. So this is the front end where currently you seeing there are some images are broken. Because of that, in our current admin dashboard panel, we change the directory of the images. That's why they are showing broken. So in this lecture, we will also change this directory of front end, and also I will explain the code how I do it. So what tools and packages you need to start with. First of all, I open my notepad where I will show you which packages you must need to install for this web application services. So first of all, we have to move to our PHP not PHP in our composer JSON file. These are the packages name which we must require to achieve this functionality which I got it or design or build it before we start tutorials on it. You have to Catalyst Stripe, okay, Hardwin shopping cart, Liver alert, Laravel share, or after that you need Liver power components of Liver power grid and Laravel PWA. These are the packages you need to install on your Laravel project. First you have to install Laravel. I'm going to show here and control this as well. First of all, you need to install Laravel. For that you have to use Laravel new services application. After that
the Laravel project is created. Next you have to do it to go into the services app. For that you have to cd services app. After that you need to install livewire. For that you have to run the command php art composer require livewire slash livewire. After that livewire you need to install Jetstream. After that you do nothing, you have to install Jetstream. For that installation you have to copy this one, or you have to write by this composer require live Jetstream Laravel slash Jetstream. After that what do you need to run for installing Jetstream liveware? You need to php artisan install livewire Jetstream. For that I have to see the command for livewire. Here is this one is the exact. I have to mention Jetstream install livewire or same. Okay, after that what do you need? You have to install livewire alert. For that you have to go on livewire alert livewire alert for you. Livewire alert Genti Nerozo livewire alerts, and you have to copy this command and run in your terminal. And after that you have to read it carefully and copy this one and paste in your base component file. Okay, after that you have to install Laravel share package. For that you have to go on your this Jory Laravel. For that you have to copy this command and run in your terminal, and after that you have to read it the package requirement instruction. After that you have to installation of this package. You have to add this in your provider array and this one to array ls array. This array exists in your config folder and in your app.php file. After that you have to do nothing or read it how do you use these shares in your front end, or I will explain in my incoming few minutes. After that you have to install Laravel PWA package. For that you have to go on this GitHub and you have to, for installation you need to first of all, or you can directly install by using this command. This command, or if it not install it, then what you have to do is to copy this one and paste it in your composer JSON require folder as it, and after that you have to run it, and after that you have to publish this command as well.
I'm going to copy this one and paste it here as well. So this is the our Laravel PWA service provider, and for next which package you have to install is Laravel Hardwin Shopping. Sorry, it should be Laravel Hardwin Shopping Cart. Hardwin Shopping Cart. For that you have to go on its package and you have to copy this command and run it in your terminal. After that, what do you need is to copy this and paste it in your providers array. By the way, these commands I am already pasted in my every video description, so don't worry if you forget any of these. You can find it from my every video description in my every video description. After that you have to copy this alias as well and paste it in app.php aliases array. After that you have to go and install Catalyst Stripe. For that you have to go on Catalyst Stripe site catalyst.com and read it how to you implement or install Catalyst shopping cart in your Stripe in your project. For that you have to go and copy this one and paste it in your composer JSON. After that you have to update your composer or run the command composer install or composer update. Any of these command, after running this command, the Catalyst Stripe Laravel install in your package, and after that you have to copy this and this one and paste in your provider arrays. This is the packages you must need to install to achieve the functionality which I achieved already. So that now we have to move for front end. From where I download my front end, you have to go truly template. By the way, this link also I mention in my all videos description, from where you can copy it and paste in your browser and open this. After that you have to choose the layout home page, choose which home page you want to use for your project. After decide, you have to go and click right click on your browser, and after that you have to go on view page source, from where you have to copy the all the source code, HTML source code of the theme and paste it in and save it in your local machines, or you can copy it and paste in your project and use it according to your page requirements. You have to also copy these files as well. By doing this, it will open this file and you have to copy it and save it with the same name. After that, copying or install saving the front end, you have to for after that copying and installing, I am going to from my initial point from where we have to start it. First of all, you have to create the live component, home component. Sorry, this is the home component. Create home component, or you have to create all these components, see and note them and carefully. After that noting, you have to run or create all this component: about component, block detail component, blocks component, card component, categories component, category component,
checkout component, choose sign up components, contact component, create service component, error component, home component, location component, or you may skip location component for currently. Okay, you have to also create privacy provider by component, providers component, search by type component, service detail component, services component, terms component, thank you component, VIP component. These are the livewire component you must have to create before starting or moving. After that, creating this component, you have to go in your routes web.php file, where you have to create routes according to this component, and after that you have to creating this component. इसको क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, नाउ आई एम मूविंग टू माय currently it is difficult for me to explain it in English to what I'm trying to say, that's why I'm switching my language for my Urdu native language. So sorry for that, you have to understand. Because of that, my English is not as good as others as your English. Because of that, my native language is Urdu, and I am good in Urdu, Punjabi, Saraiki, not as good as in English. So that's why sometimes when I need to explain things in detail, I have to switch in my native language. Otherwise, maybe I could not explain it as I need to explain it. So that's why. अच्छा, इसको क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, इनको अपने क्या कहते हैं जी, हेडर कंपोनेंट या जो जिस नाम से भी आप कंपोनेंट क्रिएट करोगे उस जगह पर, जहाँ पर भी अगर आप कंपोनेंट नहीं क्रिएट कर रहे तो भी ठीक है। सपोज मैं आपको बेस फाइल जो अपनी है वो दिखाता हूँ, लेआउट्स की जो ऐप की बेस फाइल है ये वाली हमारी, ठीक है, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। मैंने टॉप बार के एक्स टॉप बार यूज़ किया है, उसके बाद मेन्यू नेविगेशन के लिए यूज़ किया है। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, ये सारे मेन्यूज़ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके लिए। और टॉप बार में मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ को शो कर, ऊपर ये में टॉप बार की पट्टी है जिसको अभी मैंने क्लोज कर दिया। और मेन्यू में मैंने ये सारा अपना HTML का पार्ट जो है वो मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद जो है मैंने स्लॉट जैसे हम करते हैं, उसके बाद फुटर है, फुटर को कन्वर्ट किया है, फुटर को कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, और दैट्स इट। आपने भी ऐसे ही करना है। देख लीजिए कि मेन वर्ब के बाद जो सबसे पहले टॉप बार आएगा उसको मैंने टॉप बार के अंदर किया है, फिर उसके अंदर हेडर का जो भी पीस ऑफ कोड है उसको मैंने नेविगेशन मेन्यू में किया है, ठीक है। आपको नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करने की ब्लेड ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ दैट नेविगेशन मेन्यू जैसे ही हम जेटस्ट्रीम इंस्टॉल करेंगे ऑटोमेटिकली ही हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और नीचे स्लॉट आ जाएगा, और फुटर के पोर्शन को मैंने फुटर के अंदर रखा है। और इनका मैंने लाइववेयर इस दफ़ा क्रिएट नहीं किया है, मैंने इनके कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, ठीक है। जैसे कि एक्स टॉप बार के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, ये है मेरा टॉप बार, ये उसका टॉप बार का कोड है, और इसी तरह मेरा फुटर ब्लेड का कोड है, ठीक है। तो ये मैंने फुटर ब्लेड का अपना कोड रखा हुआ है, आपने भी इस फुटर कंपोनेंट को फुटर ब्लेड के अंदर ही रख लेना है, ठीक हो गया। इस तरह मैंने आपको अपना जो बेस लेआउट है कि वो कैसे डिज़ाइन करना है और उसको कैसे कंपोनेंट्स और पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको दिखा दिया है, ठीक हो गया। और ये जो है आप जब PWLRM इंस्टॉल करेंगे ये उसके साथ है, उसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे करना है। और ये कोड जो लास्ट में ये भी नीचे है, ये भी उसी के अंदर ही हमें बताया गया है कि इसको हमने PW के लिए इंस्टॉल करना ही करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने होम कंपोनेंट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं, ये ओवरव्यू हो गया। अब मैं आपको जो बताता हूँ कि आपने क्रिएट टेबल्स के अंदर टेबल्स कौन कौन से क्रिएट करने हैं, मॉडल कौन कौन से क्रिएट करने हैं। सबसे पहले मॉडल्स का एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको मॉडल कौन कौन से चाहिए। आपको
एडिशनल सर्विसेज का मॉडल चाहिए, आप नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद बैनर का चाहिए, ब्लॉग का चाहिए, बुकिंग का चाहिए, बुकिंग आइटम का चाहिए, कैटेगरी का चाहिए, चैट का चाहिए, कंट्री का चाहिए, कूपन का चाहिए, करेंसी का चाहिए, होम पेज का चाहिए, होम पेज सेक्शंस का चाहिए, लैंग्वेज का चाहिए, मैसेज का चाहिए, मोबाइल ऐप डिटेल का चाहिए, ऑफ़र का चाहिए, पैकेज चाहिए, पैकेज पीएचपी मॉडल है हमारा, ठीक है। पैकेज परचेज का मॉडल चाहिए, पेज का चाहिए, पार्टनर का चाहिए, पेमेंट का चाहिए, रिव्यू का चाहिए, एसईओ का चाहिए, सर्विस का चाहिए, सर्विस अवेलेबिलिटी का चाहिए, सर्विस टाइप का चाहिए, सर्विसेज व्यू का चाहिए, सेटिंग का चाहिए, सब कैटेगरी का चाहिए, ट्रांजैक्शन का चाहिए, यूज़र का बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, यूज़र पैकेज डिटेल का चाहिए। ये वो हैं जो आपने मॉडल्स क्रिएट करने हैं। आपने इनके सब के नाम कॉपी कर लेने, अपने पास लिख लेने मैन्युअली। आफ्टर दैट यू हैव टू क्रिएटेड दिस मॉडल यूजिंग योर कमांड लाइन, ठीक है। आपने क्रिएट कर लेने। उसके बाद जैसे आप क्रिएट करोगे तो डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर इनकी टेबल्स की फाइल्स बन जाएंगी। मैं अब आपको एक एक टेबल्स को एक्सप्लेन करता हूँ कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने रखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र्स के अंदर मैंने कुछ चीज़ें मॉडिफाई की हैं, जैसे कि ये यहाँ तक का पार्ट मैंने मॉडिफाई किया है, ये कॉलम्स मैंने ऐड किए हैं और इसको भी मैंने ऐड किया है। आपको भी इसी तरह ऐड कर लेना है। और इसमें एक और चीज़ भी ऐड करनी है, लेकिन वो मैंने आगे की हुई है, ठीक है। आगे आगे बाद में देखेंगे। जो चीज़ें जैसे मैंने की हुई है वैसे आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सर्विसेज टाइप का करना है। सर्विसेज टाइप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एक नेम को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपने भी ऐसे ही कर लेना है और सॉफ्ट डिलीट को भी आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। इसके बाद आ जाता है कैटेगरीज। कैटेगरीज के अंदर मैं 4 और 5 कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ। नेम, स्लग, लोगो, ओवरले और स्टेटस, एक्टिव और इनएक्टिव। आपने ओवरले तब यूज़ करना है कि जब आप HTML ट्यूटोरियल का सेकंड वाला यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। इंडेक्स ये वाला। अगर आप कोई और यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसके अंदर हमें कैटेगरी के, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखें कौन सा था, सॉरी, मैंने यहाँ पर कैटेगरीज ये वाली देखें। ये यहाँ पर आपको इसके लिए 2 चीज़ें, अगर तो आपने कैटेगरी इस तरह ये वाली यूज़ करनी है तो आपको फिर उसकी 2 इमेजेस रखनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये वाली यूज़ नहीं करते, आप सिंपल ही कोई और टेम्पलेट होम यूज़ करते हो जहाँ पर सिंगल यूज़ हो रही है, लेकिन बाय द वे इसमें भी 2 ही यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिएगा, अगर आप सिंगल वाला कोई है इसमें तो आप सिंगल वाला ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ 2 ही हैं तो आप 2 ही यूज़ कीजिएगा, 2 इमेजेस, ठीक है। ये दोनों इमेजेस का ऑप्शन दे देना है और दोनों नल लेबल रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद जो आएगा हमारा आएगा सब कैटेगरी। सब कैटेगरीज के अंदर क्या करें, हम कैटेगरी की आईडी को एज ए पेरेंट कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद नेम और स्लग यूज़ कर रहे हैं। सॉफ्ट डिलीट आपने हर के अंदर रखना है, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, ठीक हो गया। इसके बाद कंट्रीज़ का आ जाएगा। कंट्री के अंदर नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, कोड आ जाएगा, लैटिट्यूड आ जाएगा और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। और इसके बाद सॉफ्ट डिलीट आ जाएगा। इसके बाद पैकेजेस आ जाएंगे। पैकेजेस में क्या आएगा, पैकेज की नेम आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ भी कर लेनी है, टेबल टिनी इंटीजर यूज़ कर लेना है और इसका नाम रख देना है स्टेटस, कंट्रोल Z स्टेटस। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, 0 होगा, ताकि अगर हम पैकेजेस को भी स्टेटस के बेस के ऊपर सर्च कर सकें, एक्टिव और इनएक्टिव भी कर सकें, ठीक है। ये मैंने अपडेशन किया, आपने भी ऐसे कर लेना। इसके बाद आता है सर्विसेज आई थी। सर्विसेज के अंदर आपने इतने कॉलम्स क्रिएट करने हैं। पहले टाइटल करना है, फिर स्लग करना है, फिर प्राइस करनी है, फिर डिस्क्रिप्शन करनी है, इमेज करनी है, गैलरी करनी है, सिटी करनी है, सर्विस टाइप आईडी करनी है, कंट्री आईडी करनी है, कैटेगरी आईडी करनी है, सब कैटेगरी आईडी करनी है, यूज़र आईडी करनी है, ठीक है। आप यूज़र आईडी के बजाय यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोवाइडर आईडी, ठीक है।
ये आप पर डिपेंड करता है, वो एक अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मैं जब डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने यूज़र आईडी ही यूज़ कर लिया था, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रोवाइडर आईडी यूज़ करना है। प्रोवाइडर आईडी या यूज़र आईडी वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद सर्विस स्टेटस आ जाएगा, टाइप आ जाएगी, अप्रूव्ड आ जाएगी, पोजीशन आ जाएगी, वीआईपी है, ड्यूरेशन है, व्यूज़ है, ठीक है। इसके बाद भी और कॉलम्स हैं, लेकिन वो मैंने बाद में माइग्रेशन के ज़रिए क्रिएट किए हैं, तो वहाँ पर भी वो तब दिखाऊंगा। और इनको ये एज ए मैं फ़ॉरन की यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने भी एज इट कर लेना, ठीक है। आफ्टर दैट सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग में क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, फुटर लोगो आ जाएगा, फैब आइकन, एड्रेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट, मोबाइल, ईमेल, ये आ जाएगा। पेमेंट्स के अंदर क्या आ जाएगा, पेमेंट्स की टाइप आ जाएगी, नेम आ जाएगा, एपीआई यूआरएल आ जाएगी, मर्चेंट आईडी आ जाएगी, हैश आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा और उसका स्टेटस आ जाएगा। ये वो पेमेंट्स हैं, मींस पेमेंट मेथड्स हैं जो हम अपने इस एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने जा रहे हैं। दीज आर दी दिस टेबल इज बिलोंग्स टू आवर पेमेंट मेथड वी आर गोइंग टू यूज़ इन आवर दिस एप्लीकेशंस लाइक स्ट्राइप, इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबाइल, you can say Ufone, or you can say PayPal, or you can any bank information. So uh, to store their information we are going to use payment methods, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा पेजेस, आ जाएगा। पेजेस के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, पेजेस का नाम आएगा, टाइटल आएगा और डिस्क्रिप्शन आएगी, लाइक अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अदर पेजेस, प्राइवेसी कंडीशन, टर्म्स एंड ये सारा वाला, उन पेजेस के लिए हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी करनी है जो मैं पहले नहीं की, मैंने अब कर देता हूँ, टीनी इंटीजर स्टेटस, ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर कुछ भी इशू आएगा हम उसको अपडेट भी करते जाएंगे, ठीक है। कोड को आपने ये टेबल्स देख लिए। इसके बाद लैंग्वेजेस का टेबल आ जाएगा। लैंग्वेजेस के टेबल में मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, एब्रीवेटिव, लोकल है कि इंटरनेशनल है, नेम है, नेटिव है, फ्लैग है, ऐप नेम है, स्क्रिप्ट क्या है उसका, ठीक है, जो हमें करना है, यानी कि एप्लीकेशन लैंग्वेज सपोज उर्दू है तो उसकी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी उसके बारे में रिलेटेड है। अच्छा, डायरेक्शन है, ठीक है, आपने एज इट इसको कॉपी कर लेना है। ये भी मैंने टेबल कहीं से इंस्पायर होकर लिया था, आपने इसको एज इट ले लेना। इसमें से कुछ चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। अच्छा, डेट फॉर्मेट होगी, आपने इसको एज इट ही कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद करेंसी आएगी, करेंसी का भी आप इसने एज इट ही कर लेना है, ठीक हो गया। मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक हो गया। आपने एज इट ही कॉपी करके पेस्ट कर। इसके बाद होम पेज आ गया। होम पेज में क्या आएगा, होम पेज सेक्शंस के अंदर नेम आएगा, स्टेटस आएगा और पोजीशन आएगी, यानी कि कौन सा सेक्शन का नाम आ गया, उसका स्टेटस आ गया और उसकी पोजीशन आएगा, कौन सा सेक्शन कहाँ पर डिस्प्ले करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू होम पेजेस, होम पेजेस, यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि हम एक से ज़्यादा, पहले मैंने जब स्टार्ट कर रहा था तो मेरा डिसीजन ये था कि हम एक से ज़्यादा होम पेजेस रखेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर के लिए आपने इसको बना लेना है और इसको एज इट ही कर लेना है, ठीक है। आफ्टर दैट बैनर का आ जाएगा। बैनर कौन सा है, ये वाला, इस चीज़ को मैं बैनर नाम दे रहा हूँ। ये जो चीज़ है ये मेरा बैनर है जो फ्रंट एंड, ठीक है, ये वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है बैनर, ठीक है। ओके हो गया। उसके बाद उसका टाइटल आ जाएगा, उसका सब टाइटल आ जाएगा, उसकी इमेज आ जाएगी, उसका लिंक आ जाएगा और उसका स्टेटस आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा न्यू फीचर सर्विसेज के अंदर मैंने ये देखें एक और कॉलम ऐड किया था विद फीचर्ड के नाम से। फीचर्ड है, टॉप है, वीआईपी है, नॉन फीचर्ड है, ठीक है। और इसके बाद रिव्यूज़ का टेबल आ जाएगा जिसमें मैं 3 चीज़ें सेव कर रहा हूँ, यूज़र आईडी, सर्विस आईडी, रेटिंग कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर ब्लॉग्स आ गए, ब्लॉग का टाइटल आ गया, सब टाइटल आ गया, इमेज आ गई, डिस्क्रिप्शन आ गया और उसका स्टेटस आ गया, ड्राफ्टेड है कि पब्लिश है, ठीक है। इसके बाद सर्विसेज व्यू आ गया,
यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जिस किसी भी सर्विस को जितनी बार व्यू किया जाएगा उसका रिकॉर्ड हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाएगा चैट, आ जाएगा चैट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र की आईडी यूज सेव कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर की आईडी सेव कर रहे हैं, सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर मैं उनको उनकी एज ए फॉरेन की भी यूज़ कर रहा हूँ, आपने भी इसको एज इट ले लेना है। इसके बाद मैसेज आ जाएगा, मैसेज के अंदर में क्या है, चैट आईडी है, यूज़र आईडी है और कंटेंट है। इसके बाद क्या है, यूज़र पैकेज डिटेल, यानी कि अगर कोई यूज़र कोई पैकेज ख़रीदता है, ये कौन सा यूज़र है, जैसे कि प्रोवाइडर, ठीक है, उसके बारे में है, उसका वो पैकेज बाय करता है, बेसिक करता है, स्टैंडर्ड करता है, प्रीमियम करता है, ये उनकी डिटेल के बारे में है। ठीक है। ये यूज़र आईडी है, पैकेज आईडी है, परचेज डेट है, एक्सपायरी डेट है, यहाँ पर मैंने दोनों दे दिए। और ये पैकेज आ गया, पैकेज का यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये हमने जो पैकेज बाय करेगा उसकी डिटेल है, कौन सा यूज़र है, उसने कौन सा पैकेज बाय किया है और परचेज डेट क्या है, उसकी डिटेल आ गई। इसके बाद है क्रिएट ऑफर्स, ऑफर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज है, स्टेटस है, आपने भी इसको एडिट कर लेना है। इसके बाद में पार्टनर का है, पार्टनर्स जो हम यहाँ पर सपोज ये वाले हमारे जो पार्टनर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये पार्टनर्स आ गए, ये मोबाइल आ गया, मोबाइल एप्लीकेशन डिटेल आ गई, उसके टाइटल आ गया, उसकी सब टाइटल आ गया, उसकी इमेज आ गई, क्यूआर कोड आ गया, एप्पल है, गूगल है, कौन सा है, ये उसकी डिटेल है। और ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पर, ये इसके लिए जो हम डिटेल यूज़ करेंगे ये उस चीज़ के लिए। अच्छा जी। उसके बाद जो हमारी है सर्विस अवेलेबिलिटी है, कि कौन सी सर्विस किस दिन अवेलेबल होगी, आपने उसके लिए ये चीज़ें कर लेनी है। और उसके बाद आ गया सोशल लिंक, ये हमने ऐड कर देनी। और ये कहाँ पे ऐड करें, यूज़र टेबल्स के अंदर माइग्रेशन के ज़रिए। ठीक हो गया। इसके बाद क्या आ गया, बुकिंग टेबल आ गया। बुकिंग टेबल के अंदर हम क्या करें, यूज़र की आईडी रख रहे हैं, मोबाइल नंबर रख रहे हैं, ईमेल रख रहे हैं, सिटी, कंट्री, एड्रेस। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें और भी मैंने ऐड करनी है फ्यूचर के लिए, और वो है जिप कोड, और इसके बाद क्या है जी, स्टेट। ओके। टैक्स आ गया, सब टाइटल, सब टोटल आ गया, डिस्काउंट आ गया, टोटल आ गया, बुकिंग स्टेटस आ गया। और ठीक हो गया। ये हमारा बुकिंग आइटम्स है, जहाँ पे मैं बुकिंग की आईडी ले रहा हूँ, प्रोवाइडर की आईडी ले रहा हूँ और सर्विस आईडी ले रहा हूँ। ठीक है। और प्राइस वगैरह और ये चीज़ें मैं सेव कर रहा हूँ, और इनकी मुआवजे फ़ौरन की ले रहा हूँ, आपने भी एडिट कर लेना है। आफ्टर दैट ट्रांजैक्शंस का आ गया। ट्रांजैक्शन के अंदर मैं यूज़र आईडी, बुकिंग आईडी, पेमेंट मोड, टोटल, स्टेटस, ट्रांजैक्शन स्टेटस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर इसको यूज़र आईडी और बुकिंग आईडी को एज ए फॉरेन आईडी यूज़ कर रहा हूँ। आफ्टर दैट है कूपन का हो रहा है। कूपन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कूपन में दो तरह के होंगे, एक कूपन होगा एडमन का और एक कूपन होगा यूज़र का, प्रोवाइडर का। तो मैं दोनों टाइप के यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। आईडी आ जाएगी, टाइप आ जाएगी, कौन है, एडमन ने किया है कि वेंडर ने किया है। ठीक है। कोड आ जाएगा, टाइप फिक्स है कि परसेंटेज किया है, डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगी, इज एक्टिव है, ये सारा कुछ नीचे एज इट आपने कॉपी कर लेना। इसके बाद ये बाय द वे मैंने शॉपिंग कार्ट की माइग्रेशन की थी, जो हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ डिटेल आएगी। अच्छा जी। उसके बाद मैंने न्यू कॉलम ऐड किया है सर्विसेज के अंदर। ठीक है। सर्विसेज के टेबल के अंदर जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर ये मैंने कॉलम्स कुछ ऐड किए हैं, आपने भी माइग्रेशन के ज़रिए ऐड कर लेने हैं। ये एडिशनल सर्विसेज आ गई, जहाँ पर मैं सर्विस आईडी को एज ए फॉरेन आईडी यूज़ कर रहा हूँ, नाम, डिस्क्रिप्शन और प्राइस आपने भी एडिट कर लेनी है। इसके बाद एससीओज आ गए, उसको भी आपने एडिट कॉपी कर लेनी। सर्विस आईडी फॉरेन है और उसके बाद उसकी डिटेल रखी हुई है, मैंने वीडियो लिंक ऐड करा हूँ सर्विसेज के अंदर। और एडिशनल सर्विस आईडी ऐड कर रहा हूँ मैं बुकिंग आइटम्स के अंदर।
ठीक है, आपने भी एडिट कर लेनी है। और टाइम डेट ऐड कर रहा हूँ बुकिंग के अंदर भी, कौन सी डेट को और कौन सा टाइम। और इसके बाद ऑनलाइन स्टेटस और एडमिन अप्रूवल ऐड कर रहा हूँ मैं अपने यूज़र्स के टेबल के अंदर, कि एडमिन ने वेंडर या यूज़र अप्रूव किया है कि नहीं किया, और ये इस वक्त एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रंट आपको रिक्वायरमेंट्स कौन से पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। उनके डिस्क्रिप्शन और उनकी कमांड्स जो है पहले ही मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि कौन सा मैं फ्रंट एंड टेम्पलेट यूज़ कर रहा हूँ, उसको कैसे आपने डाउनलोड करना है। आपको मैंने बेस व्यू दिखा दिया और उसके बाद तमाम मॉडल्स और टेबल्स दिखा दिए। दैट्स इट। आज की वीडियो में मुझे काफ़ी नींद आ रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।